Hello everyone, here wishing you all a very happy 73rd Republic Day of our great nation, India. India is also known as Bharat, is a union of states. It is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary system of government. The republic is governed in the terms of Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. The constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was elected by the members of provincial assemblies. The 389 members assembly took almost 3 years to draft the constitution, holding 11 sessions over 165-day period. These years of republic have not been so easy for us. Either we talk about wars or economic crisis or the current pandemic. It's always not so easy to function the nation by a single person or a set of people. It functions well only when the citizens actively participate in the development goals. Through all the difficult conditions we see, we only win when we are together. The bond of togetherness has constantly made us strong. If we believe and love someone, then togetherness can't be broken ever. Throughout we can see that India has always been an example of so many diversities living peacefully with love. But what we see today is truly different. We see that the hatred amongst people is increasing day by day, either due to caste or religion. The people are fighting, but what we all forgot is beyond all caste, color, religion, what we all have in common is that we all are humans. And humanity comes before anything else. We should not forget that so many people have lost their lives to free the nation. Nobody was asking their caste. What we have set in our minds is to be cleared because due to some people we lose our fraternity and peace of living. All we are Indians, and that's why we should stand for killing or hating each other will help us no way. So this Republic Day, we request you all to live peacefully and spread the message of love amongst people. सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. All must have understood what we are talking about. So just let's get up, and I request Shelja ma'am to escort. जय जवान जय किसान, भारत माता की जय. Yeah.
A nation's culture resides in the heart and in the soul of its people. Good morning, everyone. Myself, Mahim Fatima of class 7th. With the waving national flag, the atmosphere is filled with patriotic zeal. Let us make it affectionate and warmer with a mesmerizing and energetic dance performance by my companions of class 7th. Wow, I am short of words to describe how enthusiastic and energetic the performance was. It was just brilliant. This performance made me feel proud of our country even more. Thank you and Happy Republic Day.
अपना एक गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 में मिला, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल से भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे ले जा सके। हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से मुमकिन हुआ कि हम अपने देश में अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो एक सुंदर मस्तिष्क से राष्ट्र बनता है। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि में अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। और अब अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। इस मौके पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है तूने
सरकशी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। ओ हाथ करके बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ करके बैठने से क्या भला कुछ होता है। हिम्मत मर्दा अगर तो सब खुदा भी होता है, हिम्मत मर्दा अगर तो सब खुदा भी होता। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश की फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश की फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदों का सपना सच हुआ, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। आओ मिलकर करें सलाम उन वीरों को जिनकी वजह से हिंदुस्तान गणतंत्र हुआ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों। मैं कक्षा 8वीं A की छात्र आशीन खान आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। हम गणतंत्र दिवस को हर साल बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। हम सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेते हैं। राज्यों में वहां के राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं।
गणतंत्र दिवस हमें लोकतंत्र के महत्व का एहसास कराता है। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। पल हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू एवरीवन। I am Madhur Jalhotra from Standard 8th. Thousands of people laid down their lives so that our country breathed today. Never forget their sacrifice. Happy Republic Day. This day marks an important event in Indian history. It commemorates the enactment of the Constitution of India, which came into effect on January 26, 1950 and made the nation into a republic nation. We are Indians, firstly and lastly. On 26 January 1950, almost 3 years of post-independence, we became a secular, socialist, democratic republic. Freedom in the mind, strength in the words, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our great country on Republic Day. Today is the day when everyone, young or old, tall or short, light skinned or dark, must come together to show the whole world that this nation is the best nation. Thank you. Happy Republic Day everyone. I am Priyanshu Chauhan of class 6th B and today I am here to recite a poem dedicated to Republic Day. Let's start. In this country we happily reside, what is good and bad we decide. Prosperity of the country we ride, known as proud Indians we worldwide. Whoever troubled us from outside, with bullets our soldiers have replied. With regret and remorse they cried, they got a lesson never ever to collide. Our country has so much supplied, so be ready for the service to provide. Let the love for our country not be dried. This can help us to lead life dignified. Jai Hind! I, Kritika Pant of class 12th, is here to compose a poem on patriotism. मेरे देश की इस पावन धरती पर कई वीर जवान जन्मे हैं। मैं आसमान में देख देख कर अपनी धरती माँ को नमन करूँ। मेरे देश के गौरव को बनाए रखने में कई वीर जवान शहीद हुए। इस गौरवशाली भारत को क्यों कई लोग बर्बाद करने आए, पर मेरी प्यारी धरती माँ ने माफ़ किया उन गद्दारों को। लेकिन अब ये खुद से वादा है, ना माफ़ करे उन गद्दारों को जिन्होंने ये खेल खेला है। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ, उन्होंने सोचा ये वीर अकेला है।
ऐसे धुत गद्दारों को हमने कई बार दूर खदेड़ा है। हम क्या चीज़ होते हैं जब मेरी माँ ने उनको माफ़ किया। अब और क्या कहूँ अपने देश के लिए, ये देश नहीं दुनिया का स्वर्ग है। भाषा बोली अलग अलग लेकिन सब एक समान। इस दिन के गौरव को याद करो, इसके लिए वीरों ने खून बहाया है। नाचो गाओ देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, my name is Anna Goswami from class 5th, St. Mary Senior Secondary School, Rudapur. Today I am going to sing a song on the occasion of Republic Day. My name is Sudarshan Pant and I am playing a song संदेश से आते हैं। हमें
अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, हमें दिखाओगे कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ये तो मैं भी नहीं घर सुना सुना है, सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं। Thank you. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls. A very warm morning to everyone present over here. I, Michelle, from class 10th A, is here to deliver a speech on the special occasion of Republic Day. As you know, today all of us are here to celebrate the 72nd Republic Day of our country. Every year, we celebrate Republic Day on 26th January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters sacrificed their lives to get us the Purn Swaraj. It's because of their struggle that today we are living in a democratic country where each citizen has right to equality, right to freedom, right against exploitations, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. I would like to wind up my speech followed by a moment of silence for the great leaders and freedom fighters who sacrificed their lives so that we may live in a democratic nation. Always be proud that you are Indian because not everyone gets the privilege of being born in this great nation. Happy Republic Day. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण तथा मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि आप सभी को विविध होगा कि आज हम भारत का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं गुनगुन अरोरा कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा इससे संबंधित कुछ जानकारियों के साथ आपको साझा करना चाहती हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में भारत का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आजादी के बाद भारत को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम व कानून नहीं थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित समिति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार किया। पर सवाल यह है कि क्या आज भारत सही मायने में गणतंत्र है?
अब भी भारत के सामने कई ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो मानव के स्वप्नों को खंडित कर देती हैं, और तब मन में बस यही ख्याल आता है, सोचा था खुशियों से भारत को सजाएंगे, समता व सद्गुणों से भारत में खुशियों की लहरें लाएंगे। ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महत्व एक कारण है, नीति अत्याचार बन रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन तीर उठा, गीता का फरमान है, दुर्जनों के सामने झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। विदेशों के तंत्रों में अभी मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान। धन्यवाद। Greetings to all. I, Ananya of class 8C is here to deliver a speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year. This year our country will be celebrating 73rd Republic Day. It is the day on which our constitution came into force, thereby starting a democratic system of governance. Republic Day's main celebration is held at Rajpath in New Delhi. Large parades showcasing the powers of Indian Army, Navy and Air Force and artists exhibiting traditional dance forms contribute the Grand Republic Day celebrations. People from across the country pay tribute to freedom fighters. Republic Day is declared as a national holiday in India. Government officials, Prime Minister and Chief Ministers of states unfurl the tricolour and honour the country and drafters of its constitution. On occasion of Republic Day, schools and colleges also organize functions at their campus like debate, speech, essay competitions, etc. Republic Day gives the message of solidarity, equality and harmony. Thank you and have a nice day. शुभ प्रभात माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। मैं अर्चिता कक्षा 6ठी की छात्रा आज आप सबके सामने गणतंत्र दिवस पर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माह जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते और तिरंगा लहराकर गीत खुशी से गाते। संविधान आज़ादी वाला बच्चों इस दिन आया, इसने पूरे दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। क्या करना है और नहीं क्या, संविधान हमें बतलाता, भारत में रहने वालों का इससे गहरा नाता। यह अधिकार हमें देता, उन्नति करने वाला, ऊंच नीच में भेद न करता, पंडित हो या लाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, संविधान ने यह बात हमें सबसे पहले बतलाई। इसके बाद बताई बातें झंझट के हित वाली, ये सब पढ़ने में लगती बातें बड़ी निराली। लेकिन संविधान को पढ़कर मानवता को जाने, अधिकारों के साथ जुड़े और कर्तव्यों को पहचाने। धन्यवाद।